Very good morning, student. Now we are in the last part of this lesson, An Astrologer's Day by R.K. Narayan. In the last lecture, we have seen that the astrologer told that stranger man, "You were left for dead, am I right?" किसी ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था, बराबर है ना? तो ऐसा उन्होंने बोला था. अभी this sentence created great interest in him. So let us see the next part. Ah, tell me more. A knife has passed through you once, said the astrologer. अभी उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. So he asked to an astrologer, "Tell me more. What do you know about me? Tell me more." A knife has passed through you once, said the astrologer. आगे जाके एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? किसी ने आपको नाइफ से मारने की कोशिश की थी. Someone tried to kill you by the knife. Good fellow means very good. You are the best astrologer. Very good. Good fellow. He bared his chest to show the scar. As he listened, the astrologer that someone has tried to kill you by the knife. Suddenly, he showed that scar on his chest. अपने चेस्ट पे जो मार्क था, किसी ने मारने का प्रयास किया था, उसकी वजह से उसके चेस्ट पे जो मार्क था वो उसको दिखा रहा है. What else do you know about me? आपको और क्या पता है मेरे बारे में? Tell me. There was a great interest in him, and he was believing believing on his sentences. So he said, "What do you know more about me?" And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead, said astrologer. तो एस्ट्रोलॉजर आगे जाके क्या बोलता है? Yes, after that you were pushed into a well nearby in the field. वो फील्ड में तुझे मरने के लिए छोड़ दिया था. उस वेल में तुझको ढकेल दिया था. Someone pushed you into the well and left you into the well, and you were left for dead. I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other. On that, the stranger man said, "I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well." To peep into means to look into. Some passers-by, the person who was passing by the side, जो वेल के बाजू से एक पर्सन गुजर रहा था. Fortunately, he had seen me that day, and that's why I could save. I got my life once again because of that man. He chanced to peep into the well. उन्होंने अंदर झांक के देखा था, उसकी वजह से मेरा लाइफ बच गया. Exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. Now great interest created in him. Overwhelmed means strong feeling. There was a strong feeling created in the mind of mind of the stranger. So with great enthusiasm, with great interest, he asked, "When shall I get at him?" he asked, clenching his fist. Clenching his fist, there was a great anger in him. So he was eager to kill that man who once had tried to kill him, means the stranger. अभी स्ट्रेंजर के माइंड में इतना सारा गुस्सा है उसके प्रति, क्योंकि कई साल पहले उसको किसी ने मारने की कोशिश की थी. तो अभी बहुत सारा एंगर है उसके माइंड में, उसको मारना था. इसलिए ही वॉज ईगर टू मीट दैट मैन, दैट किलर. सो ही आस्क्ड,
वेयर शैल आई गेट एट हिम, मुझे कहाँ मिलेगा वो आदमी, आई वॉन्ट टू किल हिम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर आंसर करता है, ही विल मीट यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इट मीन्स ही डाइड। आपको अगर आपको मिलना है उसको तो दूसरे जगत में मिलेगा, यमलोक में मिलेगा, ही विल नॉट बी ऑन द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर नहीं रहने वाला है अभी। So in the next world, answered the astrologer, he died 4 months ago in a far off town, यहाँ से दूर 4 months before he died. Further he told, you will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded, you will never see any more of him means अभी आप उसको देख नहीं सकते। The other groaned, groan उसको थोड़ा दुख हो गया। No, I want to see him, I want to kill him. The astrologer proceeded, आगे जाके एस्ट्रोलॉजर बोलता है, गुरु नायक, you know my name? The other said, taken aback. अभी एस्ट्रोलॉजर उसको बोल रहा है, गुरु नायक। On hearing the name Guru Nayak, the stranger man said, you know my name? आपको मुझे मेरा नाम भी पता है। The other said, taken aback. अभी एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा ऐसा लगता है, अरे मैंने कैसे इसका नाम लिया, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहा है। अभी देखो उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है उसके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो एकदम से एक्यूरेट बता रहा है। तो किसी के माइंड में थोड़ा शक होना चाहिए, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू टेल ईच एंड एवरीथिंग सो माइन्यूटली। स्टिल वेरी सुपरस्टिशियसली ही बिलीव इन हिम, उसके ऊपर बिलीव कर रहा है। तो देखो कोई अपना भविष्य किसी के पास देखता है तो एक लिमिट में, एक एक्सटेंट तक आदमी थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो जाता है, और जो कोई आगे वाला बताता है उसके ऊपर वो बिलीव करना चालू करता है। वही बात वो स्ट्रेंजर के माइंड में भी हो गई। अभी स्ट्रेंजर का नाम हमको पता चला है यहाँ, अभी तक पता नहीं था, अभी तक उसका रेफरेंस क्या था कि वो स्ट्रेंजर है करके, लेकिन अभी अपने को स्ट्रेंजर का नाम पता चला है, उसका नाम है गुरु नायक। स्ट्रेंजर का नाम है गुरु नायक। आगे देखेंगे, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली। अभी उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजर बोलता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसे आपके लाइफ में जो भी चीज़ मुझे सब कुछ पता चली, वैसे आपका नाम भी मुझे पता चला, वो मैनेज करता है। गुरु नायक लिसन केयरफुली, अभी अच्छे से सुनना, टू वॉट आई हैव टू से, जो मैं बता रहा हूँ, लिसन मी केयरफुली। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, नॉर्थ साइड ऑफ दिस टाउन, योर विलेज इज फार अवे फ्रॉम हियर and you require 2 days to reach at your hometown. Take the next train and be gone. So it is better if you would take the next train and go towards your home or the hometown. अच्छा होगा अगर आप जो नेक्स्ट ट्रेन है वो ट्रेन पकड़ो और अपने गांव जाओ। दिस इज बेटर फॉर यू। आई सी वंस अगेन great danger to your life if you go from home. तो वो once again उसको एक प्रेडिक्ट करता है, उसका भविष्य बताता है कि मुझे ग्रह तारे देख के ऐसा लग रहा है कि देर इज अ ग्रेट थ्रेट टू योर लाइफ once again, so it is better if you go towards your hometown. So don't dare to go away from your home. अपने होम से दूर जाने का डेयर मत करो, साहस मत करो। इट इज़ बेटर इफ़ यू लिव मीन्स अलाइव, ही लिव एट योर होम। अगर आप अपने घर में ही रहेंगे तो आपके लिए वो अच्छा है। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो होम फ्रॉम होम। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। सेक्रेड ऐश मीन्स कुछ विभूति जैसा ऐसा रहता है ना, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था, सेक्रेड ऐश,
वो जो पवित्र राख बोलते हैं उसको, वो उसको देता है। अभी ये सब ड्रामा चल रहा है, हाँ? ये उसका सब ड्रामा है एस्ट्रोलॉजर का। वो सेक्रेड ऐश ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए, तैयार करने के लिए एस्ट्रोलॉजर लोग ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं ना। वो उसका इक्विपमेंट रहता है, पैराफेरनेलिया रहता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वो उसको सेक्रेड ऐश देता है एंड ही टोल्ड हिम टू अप्लाई इट ऑन योर फोरहेड। उसको आपके फोरहेड में उसको अप्लाई करो, लगा दो, ताकि आपका लाइफ सेव हो जाएगा, बच जाएगा। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। अपने फोरहेड पे उसको अप्लाई करो एंड गो टूवर्ड्स योर होम। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। अभी से साउथवर्ड साइड में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है। एंड यू विल लिव टू बी 100। इफ यू फॉलो माई एडवाइस डेफिनेटली यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लाइफ। आपको अच्छे से लाइफ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं फिर आपके लाइफ में। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड। क्यों, मैं क्यों लाइफ अपना घर छोड़ूंगा। रिफ्लेक्टिवली थोड़ा विचार करता है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। अगर वो मुझे मिलता था तो मैं उसको मार ही देता था। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। उसको अभी पश्चाताप हो रहा है कि वाई आई डिडंट गेट दैट मैन। उसको पश्चाताप हो रहा है कि मुझे मिलना चाहिए था वो आदमी, मैं उसको मारना चाहता था। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व। मेरे हाथ से वो छूट गया, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है। आई प्लीज्ड दैट ही गॉट द डेथ एज ही डिजर्व्ड। जो उसको वो लायक था ऐसे मृत्यु के लिए, ऐसे डेथ के लिए वो लायक था, तो अच्छा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर। ऑन दैट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो सेड यस ऑफ कोर्स ही डिजर्व दैट टाइप ऑफ डेथ। वो भी उसके अच्छा हो गया है कि उसको ऐसी ही मृत्यु मिल गई। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी सेड एस्ट्रोलॉजर। वो बोलता है वो लॉरी के अंडर क्रश हो गया, एक्सीडेंट, he died in an accident. The other looked gratified to hear it. Gratified, pleased. When he listened that the man was crushed under a lorry, he pleased. He felt satisfied. उसको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हो गया, उसके लाइफ में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, अच्छे से उसको डेथ मिल गई। वो डिजर्व था उसके लिए, वो पात्र था उसके लिए, क्योंकि उसके मन में बहुत सारा एंगर था वो उस आदमी के प्रति जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। वो स्ट्रेंजर आदमी के माइंड में उसके प्रति एंगर था। अभी स्ट्रेंजर का नाम क्या है, गुरु नायक। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। नाउ द मैटर वॉज फिनिश्ड between the Guru Nayak, means the stranger, and the astrologer. He gave the answers of all his questions. So our astrologer collected all his equipments, all his paraphernalia, and put it into his bag. And now the place was deserted, means the place remained in a silence. अभी रास्ते पे कोई नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। सो अपने सब आर्टिकल्स वो अपने बैग में रखता है और वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो ग्रीन, जो स्लाइट ग्रीन लाइट थी वो भी चली गई। लिविंग दिस प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। नाउ देयर वॉज ओनली डार्कनेस एंड साइलेंस ऑन दैट प्लेस। जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठता था वहाँ खाली डार्कनेस और साइलेंस था, एंड नथिंग एल्स बिकॉज इट वॉज टू नाइट। द स्ट्रेंजर हैड गोन ऑफ इन टू द नाइट after giving the astrologer a handful of coins. अपने हाथ में handful of coins means पूरे हाथ भर के 2 हाथ ऐसा पकड़ के जितना भी coins है सब उसके सामने रखता है और वो चला जाता है स्ट्रेंजर मैन। It was nearly midnight when the astrologer reached home. अभी it was too late to reach at home. अपने घर में पहुंचने के लिए उसको आज बहुत टाइम हो गया, मिडनाइट हो गई।
तो his wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. Wife was waiting for him because it was too late to reach at home. बहुत देर हुआ था, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो आपको पता है women are very worried taking the matter of her husband. वो बहुत चिंता कर रही थी, अभी तक उसका हस्बैंड कैसे नहीं आया. तो वो एंड दिस इज वुमनली फीलिंग दैट शी वॉज ईगर टू लिसन द एक्सप्लेनेशन द रीज़न. वो बहुत ईगर थी कि क्यों आपको लेट हो गया. ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम. वन मैन गिव ऑल दैट. तो उसने क्या किया, उसके सामने सब कॉइन्स फेंक दिए. एंड काउंट. वन मैन गिव मी ऑल दैट. 12.5 annas. So she counted and got 12.5 annas. इतना पैसा उसको मिला था, उस स्ट्रेंजर आदमी ने दिया था. 12.5 annas. Counting. She was overjoyed and she became very happy because she didn't see this great coins in her life. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. So I got this much money. So I was planning to buy some jaggery and coconut because I want to give some sweet dish to my daughter. The child has been asking for sweets for so many days now. मेरी लड़की कितने दिनों से स्वीट डिश मांग रही है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था जागरी और कोकोनट खरीदी करने के लिए. सो इट इज़ बेटर आई गॉट द मनी. I would complete the desire of my child. हमेशा मदर को बहुत अच्छा फीलिंग होता है अपने बच्चे को खिलाने में, जो वो नहीं दे पा रही है, तो उसको सुकून मिला. I will prepare some nice stuff for her. मैं उसको स्वीट डिश बनाऊंगी मेरे लड़की के लिए. The swine has cheated me. He promised me a rupee. Now, the swine, this word is used badly. Because there was great anger in the mind of an astrologer. Because he promised him to give 1 rupee, actually he had not given him that rupee. कम पैसा दिया, 1 रुपये को पैसा कम दिया. कितना दिया था? 12.5 annas. So he got angry on him. उसको गुस्सा आ गया. So he used the word swine. The swine has cheated me. उसने मुझे फंसाया. He promised me to give 1 rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? तो अभी वाइफ उसका फेस रेड करती है और बोलती है, You looked worried. आप तो बहुत चिंता तो दिख रहे हैं, आपको तो आज अच्छे से पैसा मिल गया. What is wrong with you? क्या हुआ है आपके साथ गलत? Nothing. वो बोलता है कुछ नहीं है. इट्स ओके. नो, आई एम नॉट वरीड. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पोयल ही टोल्ड हर. पोयल मीन्स कॉट विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रिंग. जो दूर का कॉट बनाते हैं ना, स्ट्रिंग का कॉट बनाते हैं, उसको पोयल बोलते हैं. सो आफ्टर हैविंग डिनर they were sitting on the poel. He told her, Do you know, a great load is gone from me today. I felt very relaxed today. He told to his wife. He told to his wife. मुझे आज बहुत रिलैक्स्ड फीलिंग हो रही है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि कोई बर्डन मेरे माथे से चला गया है. आई फेल्ट रिलैक्स्ड. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स. All these past years, I was thinking that there was a blood of a man to my hand. मुझे ऐसा लगता था कि I had killed someone. मैंने किसी को मारा था, ऐसा मुझे लग रहा था. So I was under this feeling. I was regretted for that. There was great fear in my mind taking this case or taking this matter. But now I felt relaxed and I came to know that the person was all alive. तो पूर्णतः वो जिंदा था. उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. That was the reason why I ran away from home. So he answered here. He gave clarification that why did I come away from my village town? I come
away from this village town because there was great pressure on my mind, thinking that I had killed someone. So, in order to save my life, I had come here away from my hometown and settled here and married you. बट ही इज़ अलाइव, इसलिए मैं इतना दूर आ गया खुद को बचाने के लिए, और यहाँ आकर मैं सेटल हो गया, अपना लाइफ सेटल किया और आपसे शादी की. लेकिन आज मुझे पता चला है कि वो तो जिंदा है, मरा नहीं. सो आई फेल्ट रिलैक्स्ड. शी गास्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम. इसका मतलब आपने उसको मारने का प्रयास किया था. यू हैव ट्राइड टू किल हिम. यू आर सो बैड मैन. ऐसा थोड़ा उसको लगा, अरे अपने आदमी ने ऐसा किया था. येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सीली यंगस्टर. आपको पता है ना, टीन एज में कैसे टीनेजर की इंटेलेक्चुअल पावर थोड़ा ईगर रहती है. बिना सोच समझ के हम कुछ काम करते हैं. एडोलेसेंस एज रहता है ना. सो वी आर नॉट so much meditative, or there is no patience in the teenage. So madly he tried to kill him. So he admitted that I was silly youngster that time. मैं थोड़ा सीली था, मूर्ख था, और मैंने उसको मारने का प्रयास किया था. We drank, gambled and quarreled badly one day. एक दिन हमने बहुत सारी पी रखी थी, गैम्बल किया था और एक दूसरे से अच्छे से झगड़ा किया था. उस झगड़े में मैंने उसको गुस्सा होकर उसको मारने का प्रयास किया था. वाई थिंक ऑफ इट नाउ. he managed his mind and he said, but why should I think about that past days now. अभी उस वो बुरे दिन सोचने की क्या ज़रूरत है. दिस इज टाइम टू स्लीप. अभी तो सोने का टाइम हो गया. he said, means he avoided to tell any more about that thing. खुद को थोड़ा जगह पे लेके आ रहा है अपने माइंड को. दिस इज टाइम टू स्लीप, ही सेड, यॉर्निंग. यॉर्निंग कर रहा है क्योंकि दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्लीप. अपने नींद आ रही है उसको तो यॉर्निंग कर रहा है. एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पोयल एंड ही light on that poel and felt relaxed because there was a great burden removed from his head. So we have completed this lesson, and read this lesson twice. Try to solve the activities which are given in the brainstorming. Thank you.